Okay, good evening all of you. And I think साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है पूरा। आज पूरा एक नया वीडियो फर्स्ट वीडियो है आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर 11th का आईआईटी जेई नीट बेसिस में रहेगा। पूरा बोर्ड भी कवर करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप द टोटल वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू and you know your favorite channel, that is iconic channel, iconic concept, and welcome to its digital classroom. And I am your VDP sir, and that is the Newton's laws of motion. And you know that is the laws of inertia was introduced by Newton. Actually, what is the basic concept inside it? That is a trajectory, and that is the hidden treasure inside this concept. And next part is the inertia is directly proportional to mass. That's a great things that will be discussed on this part. Clear? And finally, coined your concept at the rate of BTP, sir. That is something different things. You have to kind your concept. That's the main things. Means you have to centralize, you have to rebuild, you have to renovate new concepts. Okay, thank you. And we'll be start our first concept of this topic. Okay, my dear students, first of all, you have to know what are the syllabus are there, and today will be covered. Try our level best to cover this part. And 12 student, don't worry. Tomorrow your video will become for the question discussion of one topics. Minimum 2 questions discussion and some concept will be start. Correct? And that is the for you people also it will be effective for your NEET entrance point of view. So today will be start and try to complete this part. Introduction to laws of motion. What do you mean by mechanics? Types of mechanics. Will be cover the what do you mean by force, effect of resultant force, Aristotle fallacy, and Newton's first law of motion. Clear? So first of all, my dear student, that's you have not to write anything. I'll be share the notes, PDF in the Telegram channel. That is iconic concept at the rate of BDP, sir. You can find out it. And second things, I will be share the links also in the YouTube also. Okay. So I hope that video will be helpful to you for your bright future and to crack the entrance. Thank you. So now start introduction to laws of motion. So first of all, laws of motion means its name is the definition, my dear student. Laws of motion means, try to understand. Laws of motion means the rules which are associated with which are associated with the motion of a particle, with the motion of a particle, motion of a particle. Okay, let me check. Try to understand very interesting concept. So first of all, you have to know laws of motion means what are the rules. What are the rules? We have to find out which of the rules are there associated with the motion calculation of a particles. Clear? So means I can tell you. So a body can be under the motion conditions. How? Suppose for example, my dear student, you are in this condition. The body is sitting here. So is it possible to move it? Not, due to its inertia, no? So at that time it required some agent, external agent, maybe acceleration required, maybe force function required, anything is required. Some person try to hurt it, anything will be required by which the body can be motion condition. Yes or no? बॉडी कम मोशन को आएगा, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब एजेंट क्या क्या है, इसका सब फंक्शन क्या है, ये सब जानने के लिए हमको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्या? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट डू मीन बाय मैकेनिक्स। Mechanics means, my dear student, analysis of force. Analysis of force
acting on a body is known as mechanics. Try to understand. Suppose, my dear student, suppose I put a body over here. So the body is standing. Am I correct or not? It cannot go to the downward direction. But if let assume it is not a solid surface, it's purely a mud surface, or you can consider your favorite ice cream, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कोई भी एक फ्लेवर यहाँ पे है, ठीक है। इसके ऊपर एक सॉलिड बॉडी को डाल देंगे तो वह रहेगा क्या? वह इंसर्टेड हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, घुसते लगेगा। ये सर नो, बिकॉज द बॉडी का रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। मेरा ये हैंड को, अपर वाला हैंड को सपोर्ट करने के लिए ये लोअर वाले को कुछ सपोर्ट नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। ये सर नो, तब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो फोर्स बॉडी ने डाल रहा है और जो ये वाला बॉडी इसको रेजिस्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये एनालिसिस, ये कैलकुलेशन सब होता है क्या? मैकेनिक्स के अंडर में। तो मैकेनिक्स का काम क्या है? फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स ऑफ एक्शन एंड फोर्स ऑफ रिएक्शन को, कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। So it is in the short term or single word, single definition, it is telling that the analysis of force acting on a body, कोई एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स डाल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल, माय डियर स्टूडेंट, आई एम ड्राइंग अ डायग्राम. लेट assume that is a solid surface is there. I think that is a solid surface is present over here. Okay, on that solid surface a solid body is present. What is present? A solid body is present. Let assume it has a mass. It has a mass is equal to how much? Let assume 10 kg. So my dear student, you know, due to the mass there is a weight will be developed or not? Due to gravity. Due to gravity, mass can apply or develop some amount of what? Some amount of weight. Yes or no? मास क्या करेगा? एक वेट डेवलप करेगा। मान लेते हैं इसका वेट कितना है? वेट इक्वल टू m इंटू जी इज इक्वल टू m कितना है? 10 kg है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, तो हाउ मच इट इज? 100 न्यूटन आ गया। So my dear student, ये 100 न्यूटन मीन्स you try to go downward, but at the time ये जो सॉलिड्स बॉडी है ना, ये जो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस क्या कर रहा है? इसको रेजिस्ट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। दैट इज नोन एज बाय फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है? फोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ब्लू कलर वाले जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी द कलर प्रॉपर्ली। ये जो वेट वाले है ना, ये फोर्स ऑफ एक्शन है। फोर्स ऑफ एक्शन है, क्या है? mg, एंड इट इज रेजिस्टेड बाय व्हाट? फोर्स ऑफ रिएक्शन व्हिच इज अप्लाइड बाय द सॉलिड सरफेस। क्लियर? ये जो fr क्या है? अप्लाइड बाय सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। सो ये जो तमाम फोर्स है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ आर, ये सब कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? हम मैकेनिक्स बोलते हैं। तमाम जितना फोर्स है, ये सब कैलकुलेशन क्या होता है? मैकेनिक्स होता है। ठीक है, प्रोसीड करते हैं अभी। तो मैकेनिक्स क्या समझ में आ गया? एनालिसिस और कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body is known as what? इसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैकेनिक्स बहुत आसान है, सबसे इजी टॉपिक ये है, सबसे अच्छा है, कंसेप्चुअल भी है। तो दैट इज नोन एज बाय मैकेनिक्स। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स। क्या क्या है? मैकेनिक्स फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक क्या है? रेस्ट बॉडी के लिए है, रेस्ट बॉडी के लिए है,
और एक क्या है मूवेबल बॉडी के लिए, बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन के लिए। एक किसके लिए है, एक रेस्ट बॉडी के है, जो कोई भी वैल्यू इसका नहीं है, वेलोसिटी का जीरो है। एक मूवेबल बॉडी है, कोई एक वेलोसिटी है v है, ठीक है। ये दोनों बॉडी के लिए दोनों टाइप मैकेनिक्स होता है। तो जो बॉडी जब रेस्ट में है, व्हेन द बॉडी इज इन अंडर रेस्ट, body is in rest, when the body is in rest, body is in rest, then force calculation on the body, force calculation on that body, on that body क्या होता है, body is known as, is known as क्या है, मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक, मैकेनिक्स ऑफ स्टैटिक। कोई एक बॉडी जब रेस्ट में होगा, इसका जो फोर्स कैलकुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक मींस बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। स्टैटिक मींस क्या है, रेस्ट कंडीशन। मैकेनिकल वर्ड में, मैकेनिक्स का वर्ड में, फिजिक्स का वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट को स्टैटिक कंडीशन बोलते हैं। अनदर वन कंडीशन है व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, जब कोई टाइम में, कोई एक समय में बॉडी जब मोशन में होता है, एंड कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन इट इज नोन एज क्या है, नोन एज मैकेनिक्स ऑफ डायनामिक, और मैकेनिक्स डायनामिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ डायनामिक, इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर। ये जो डायनामिक मैकेनिक्स है, स्टैटिक है के अनदर इज फॉर डायनामिक, क्या है, वन इज स्टैटिक मैकेनिक्स, अंदर क्या है बताओ, वन इज स्टैटिक, अनदर इज डायनामिक, वन इज स्टैटिक, अनदर इज माई डायनामिक। पर आराम से पढ़ाएंगे, सोच समझ के पढ़ाएंगे, आराम से, बी पेशेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। वन इज डायनामिक, अनदर इज माई स्टैटिक। एंड ये जो डायनामिक है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड इन द सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन में। सो दैट इज नोन एज माई, वन इज काइनेमेटिक्स, one is kinematics, another is known as my kinetics। ये काइनेमेटिक क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है, इट इज टेलिंग दैट, काइनेमेटिक इज टेलिंग दैट द कैलकुलेशन ऑफ, the calculation, or you can tell it deals with, it deals with the motion, it deals with the motion of a body, it is the motion of a body, क्या होता है, motion of a body can be calculated by considering the cause of motion, cause of motion। सपोज मान लेते हैं, माय स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज ये एक बॉडी है, देखते हैं, एक कार है, मान लेते हैं, क्या कौन सा कार है, लैम्बोर्गिनी है, मेरा हैंड का लेफ्ट हैंड में है लैम्बोर्गिनी कार, ठीक है। वो लैम्बोर्गिनी कार कहाँ पे है, इज इन रेस्ट में है, बट नाउ लैम्बोर्गिनी कार मूव कर रहा है 500 किलोमीटर पर सेकंड में, कितना में, 500 किलोमीटर पर सेकंड में। ये किसके लिए जा रहा है, मैं बता दिया आपको, हाँ मैंने एक किक मार दिया, इसके लिए वो जा रहा है, तो यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी इजीली, यस और नो। बट ये क्या बोल रहा है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। ये जो मोशन हो रहा है ना बॉडी का जो मोशन हो रहा है, इसका कॉज हमको पता है,
तो हम मोशन तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी तो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं। बट काइनेटिक्स क्या बोला है, द वेलोसिटी फंक्शन और मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ये कोटा वाला इंस्टीट्यूट नहीं है, मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड, can be calculated without considering, without considering क्या है, without considering the cause of motion, cause of motion is known as, क्या है, is known as kinetics, is known as kinetics, क्लियर। ये क्या है काइनेटिक, अरे बाबा सर कुछ तो रीजन पता नहीं है, फ्यूल के मींस ड्यू टू द फ्यूल, ड्यू टू द चार्ज, ड्यू टू द किक, बाय व्हिच रीजन द बॉडी इज मोशन, आप तो बताया नहीं, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फोर्स कितना है, एक्सीलरेशन कितना है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बाद में बताएंगे। ओनली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी source, without any source given, we have to calculate the force value, clear, we have to calculate the velocity function, we have to calculate the speed function, that analysis is known as by what, kinetics, clear। Next part shall I proceed, okay, now will we go for what is the mechanics complete, types of mechanics complete, now we will be go for the force, try to understand what do we mean by force my dear student, force क्या है, पूरा बीट वाइज जा रहे हैं, ठीक है, पूरा बेहतरीन से पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ट्राई टू अंडरस्टैंड फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, यू कैन टेल एन एक्सटर्नल एजेंट, an external agent which changes, an external agent which changes the state, कोई एक बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में, वो स्टेट को चेंज कर देगा, चेंजेस द स्टेट, स्टेट कमा साइज और द यूनिफॉर्म वेलोसिटी कमा डायरेक्शन और बोथ velocity and direction, velocity and direction is known as, क्या है, is known as force, my student try to understand। आपको न्यूटन का जो फासला पता होगा सब 10th क्लास में, ये जो फोर्स का क्या होता है, एन एक्सटर्नल एजेंट होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट होता है, इनका काम क्या है, वो कोई एक बॉडी में रेस्ट में है, कोई एक बॉडी रेस्ट में है, ये क्या करेगा, इसको मूवेबल करेगा, है कि नहीं, एक बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी कौन सा कंडीशन में है, रेस्ट में है, कौन सा कंडीशन, रेस्ट में है बॉडी, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट में है, ऐसे चला जाए क्या अपने आप, नहीं तो जाएगा ना, चला जाएगा क्या, आपका जैसे कि एग्जाम नहीं है, पढ़ाई होगा क्या, नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, एग्जाम चाहिए, एग्जाम होगा तो हो जाएगा, आपको आइकॉनिक कॉन्सेप्ट बोलेगा 10 करोड़ रुपया दे दो, हम गूगल में आपको सीएम बना देंगे, ठीक है, गूगल का एमडी बना देंगे, एंड सैलरी कितना रहेगा, 1 करोड़ पर 1 मिनट, पढ़ाई करोगे, चांस नहीं सर, एक किडनी बेच देंगे, आइकॉनिक कॉन्सेप्ट को दे देंगे, फिर क्या हो जाएगा, गूगल का सीईओ बन जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब काम होता है, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, क्योंकि इनर्शिया क्या करता है, बॉडी को ओरिजिनल स्टेट में रखने के लिए कोशिश करेगा, और पढ़ने का तो कोई किसी का मन नहीं है कि नहीं, पढ़ाई मीन्स एक प्रेशर में आप करते हो, एग्जाम का प्रेशर में करते हो सेल्फ स्टडी, है कि नहीं। तो मान लेते हैं आप इन रेस्ट कंडीशन में है, लपट के है बेड में, ठीक है, सोए हैं आप लोग, तो एट द टाइम हाउ यू कैन गो आउट, कोई एक किंग कुबरा आ गया, कहां पे, बेड के ऊपर, क्या करोगे, suddenly you will be wake up, you will be jump down, yes or no। similarly फोर्स क्या होता है, एन एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि बॉडी को एक्सीलरेट कर देता है,
एक्सीलरेटेड बॉडी को रेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। कोई एक बॉडी हाई स्पीड में जा रहा है, मान लेते हैं आपके पास एक लैम्बोर्गिनी कार है, इसका सनरूफ है खोल दिया, ठीक है, आप व्हीकल में ड्राइव कर रहे थे, कितना में 100 किलोमीटर पर आवर में चल रहे थे आराम से, ठीक है, बट सडनली अपने दोस्त आ गया, वो लड़की थे, वो लड़की जब आपका व्हीकल को आ गया तो क्या करोगे आप लोग, पूरा व्हीकल का जो तेज है ना बढ़ जाता है कि नहीं, क्योंकि मैडम लोग एनर्जी दे देते हैं ना, है कि नहीं, पूरा एनर्जेटिक हो गया, आप पूरा हाई वेलोसिटी में चला जाते हो, है कि नहीं। सो माय पॉइंट इज दैट कोई एक बॉडी रेस्ट में है, एक्सीलरेट होगा तो भी फोर्स चाहिए, एक्सीलरेटेड बॉडी है, इसको रेस्ट में आने के लिए वो भी एक फोर्स चाहिए, है कि नहीं। तो फोर्स है क्या, ये एक एक्सटर्नल एजेंट होता है कि बॉडी का रेस्ट कंडीशन को मूवेबल बना देता है, मूवेबल कंडीशन को रेस्ट में कन्वर्ट करा देता है कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और अनदर एग्जांपल है सर, एक मान लेते हैं कंटेनर ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, मैं इसको मूवेबल भी नहीं किया, रेस्ट में है, रेस्ट में रहने दीजिए, ठीक है, आई हैव गिवन द परमिशन to make it in rest condition, I have not given any force on it, clear, and I have not make it movable condition also, but suddenly one person can hammer on it, means applied some external agent or not, at that time इसका जो सर्कुलर और स्पेरिकल शेप था ना, वो स्पेरिकल शेप चेंज हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप हो गया, स्पेरिकल शेप चेंज हो गया, क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप हो गया, किसके लिए, ड्यू टू द एक्सटर्नल hammering, am I correct or not? So can I conclude over here, an external agent, try to see the screen, an external agent which changes the state, means rest to motion or motion to rest, change the shape and size, shape size change होगा कि नहीं, बोले yes or no। आपका जो पूरा ग्लोरियस साइज है ना, जब एग्जाम आ जाता है आईआईटी जेईई एडवांस का, तो क्या करते हो, पूरा शेप साइज कम होके ग्लोरी कम हो जाता है कि नहीं, डर्टी हो जाता है, डस्टी हो जाता है, ग्लोर पूरा कम हो जाता है, ग्लैमर पूरा चला जाता है कि नहीं। सो शेप साइज चेंज होता है जब एक्सटर्नल एजेंट आता है, वही एक्सटर्नल एजेंट को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो जो फोर्स है वो फोर्स कहां से आया है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट थिंग्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ओके, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, इट वाज डिराइव फ्रॉम, कहां से डिराइव हुआ बताओ तो, कमेंट में बताना। न्यूटन का जो वीडियो कंटिन्यू करने के प्रीवियस में ये बताना, न्यूटन का जो फोर्स है कहां से डिराइव हुआ, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है। सो इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। So later will be discuss Newton second law, very big concept it is, very so many numerical will be solved, JEE advanced का and NEET का, don't worry about that. So it is derived from Newton second law, क्या है बाद में बताएंगे। So first of all you have to know force is equal to what, you know, mass into acceleration sorry, mass into acceleration, mass into acceleration. So that implies, can I write my dear student, you know, F is equal to m into a, where F is equal to what, F is equal to what, फोर्स है, बोलो यस और नो, एक्सटर्नल एजेंट तो है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, सॉरी। सो F इज इक्वल टू फोर्स है, ठीक है, and m is equal to what, mass of a body, and a is equal to my acceleration। ये जो एक्सीलरेशन है ना माय डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन भी हो सकता है। जब रिटार्डेशन हो जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन हो जाता है, जब एक्सीलरेट बॉडी होता है वो एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट आई कैन कंक्लूड ओवर हियर, एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताऊंगा आप लोग को, कंटिन्यू करना आराम से, देखो। सो F इज इक्वल व्हाट, यू नो, मास इज इक्वल टू kg, यू नो, एंड A इज इक्वल टू एक्सीलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस, ओके। सो kg into मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज माय न्यूटन। माय डियर स्टूडेंट ये एक बेहतरीन सा यूनिट है जो हर कोई जगह में मींस जरूरी होगा आप लोग को,
पोटेंशियल निकालो, न्यूटन का जरूरी होगा। वर्क निकालो, जरूरी होगा। प्रेशर निकालो, जरूरी होगा। जो कुछ भी, सो मेनी पैरामीटर्स आर एसोसिएटेड विद माय न्यूटन, सो केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेमोराइज करने की जरूरी नहीं है, इफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, हो जाएगा आराम से। सो एफ इज इक्वल व्हाट, एम ए। ठीक है, सो नाउ आई कैन राइट ओवर हियर एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन इज इक्वल टू केजी इनटू मीटर अपन क्या है, सेकंड स्क्वायर। सो इज इक्वल 1 केजी इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 10 to the power 3 ग्राम। बोलो यस और नो। इनटू 1 मीटर इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर, 10 to the power 2 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो, अपन सेकंड स्क्वायर। So I can write how much, 10 to the power 5 gram into centimeter upon second square. So that is known as, my dear student, एक interesting unit that is known as my what, dyne. That is known as dyne. kg gram into centimeter per second square is known as my dyne. So what do you get? We get that 1 Newton is equal to 1 kg into meter upon second square is equal how much, 10 to the power 5 dyne. So my dear student, there are two types of unit conversions are there. Try to understand. One is known as my SI unit, that Newton is known as, and kg into meter per second square are known as my SI unit, and this is known as my what, CGS unit. But question तो इसमें दे देगा तो good है, no problem. But sometimes the question is twisting in that way. What is that way? It is telling that, what it is telling, the body has, क्या बोलता है, कोई कोई टाइम में कंफ्यूजन क्या करता है, a body has mass equivalent weight, mass equivalent weight और force, weight और क्या है, force है। So it is written as, denoted as क्या है, kgf। क्या है, kgf। kgf means, my student, try to understand, 1 kgf is equals to 1 kgf is equals to how much amount of force is deserved by a body due to how much amount of force is deserved by a body due to you can tell 1 kg mass, 1 kg mass। Try to understand, ये जो 1 kg के वजह से due to 1 kg how much force a body can deserve, means 1 kg के वजह से कितना फोर्स डेवलप हो रहा है बॉडी में। we know, my dear student, force is equal to what, already I told, ma। तो my dear student, try to understand, अभी मास कितना दे दिया, मास कितना दे दिया, 1 kg, एंड फ्री फॉल कंडीशन में, at free fall condition, A is converts to acceleration due to gravity, है कि नहीं my dear student? यहाँ रिटर्न क्या है, how much amount of force is deserved by a body due to 1 kg mass, am I correct or not? So एक body free fall हो रहा है तो acceleration is equal acceleration due to gravity हो जाएगा। तो 1 kg into acceleration due to gravity, let approximately 10, approximately क्यों लिखेंगे, लिख देते हैं परफेक्ट वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो यस और नो। So how much it is coming, 9.8 न्यूटन। तो my dear student, 1 kgf is equal how much, 9.8 न्यूटन। बोलो यस और नो, समझ में आया कि नहीं? सपोज एक क्वेश्चन में है, सर 15 kgf है, mass equivalent weight is given by 15 kgf, how much given, 15 kgf। So is equal to 15 kgf means what, m into acceleration due to gravity I have to do, m is how much, 15, into acceleration due to gravity approximately 10 is how much, 150 न्यूटन। बोलो यस और नो। अनदर एग्जांपल, सर एक बॉडी का
मास इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 200 kgf. So what is the weight will become? Weight is equal to 200 into approximately 10 is equal how much? 2000 Newton. बोलो यस और नो, समझ में आ गया? कभी गलती होगा और एग्जांपल चाहिए और एक एग्जांपल देते हैं. मास इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल हाउ मच? 100 kgf is equal how much? 100 into acceleration due to gravity 10 how much? 1000 न्यूटन. बोलो यस और नो. ये एग्जाम में क्वेश्चन में कंफ्यूजन बनाता है. ठीक है, क्लियर? तो फोर्स क्या आ गया? एसआई यूनिट में क्या हुआ? न्यूटन. सीजीएस में डाइन. एंड मास इक्विवेलेंट में क्या हो जाता है? केजीएफ. क्लियर? एम आई करेक्ट और नॉट? नाउ नेक्स्ट पार्ट. 1 Newton, my dear student, is equal to 1 kg into meter upon second square. So its dimension what I can write is equal to, can I write m1 l1 t to the power minus 2. कोई स्टूडेंट का डाउट होगा सर ये क्या हो गया? एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट डायमेंशन क्या होता है? यूनिट डायमेंशन पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा बता देता हूं अभी भी. डायमेंशन क्या है? पूरा बेसिक स्टूडेंट जो है इसी को समझाने के लिए बता रहा हूं. जिसको पता है डोंट वरी अबाउट दैट, लिटिल बिट स्किप दैट मींस टाइमिंग. सो डायमेंशन क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट क्या है? केजी. केजी किसको रेफर करता है? मास को. मीटर किसको? लेंथ को. एंड सेकंड किसको? टेम्परेचर. और टाइम बताओ? टाइम को. ठीक है, तो नाउ माय डियर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मास जो है कितना है? एक ही तो प्रेजेंट है, तो m टू द पावर 1 लिख दिया. लेंथ कितना है? l टू द पावर 1 लिख दिया. माय डियर स्टूडेंट 1 upon x square is equal to how much it is? x to the power minus 2. बोला yes or no? So I can write x to the power minus 2. Similarly x to the power minus 3 is equal to how much? 1 upon x cube. बोला yes or no? Similarly 1 upon t square is equal to how much? T to the power minus 2. So it is the dimensional formula. It is the dimensional formula of Newton or force, you can tell. Dimensional formula for force. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स. इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट सो फर्स्ट, इसका काम क्या है? फोर्स क्या कर सकता है? इट में चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, है कि नहीं? इट में चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी. मान लेते हैं आप क्या करते हैं, पूरा लैम्बोर्गिनी कार में 500 किलोमीटर पर आवर में चल रहे हैं. ठीक है, सडनली आपको बंद करना है, गाड़ी व्हीकल को स्टॉप करना है, तो क्या करते हो आप? सडनली ब्रेक पे अप्लाई कर देते हो. यस और नो? मींस यू आर जैकिंग फोर्स, यू आर अप्लाइंग. यस और नो? यू आर अप्लाइंग द जैक. एम आई करेक्ट और नॉट? सो दैट इज ए फोर्स और नॉट? इट मे बी चेंज द स्पीड. सिमिलरली और ये क्या कर सकता है? इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी. डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी. और क्या कर सकता है? इट में चेंज, इट में चेंज क्या? इट में चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. और ये क्या कर सकता है? इट में चेंज शेप, साइज. शेप एंड साइज ये सब कर सकता है. ये सब ऑलरेडी पढ़ाया है.
बॉडी का शेप साइज चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है, बोथ फोर्स एंड बोथ स्पीड एंड, और क्या स्पीड भी चेंज कर सकता है, फिर डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट विल बी प्रोसीड नाउ।